Yeah, Assalamu alaikum. Uh, Today we'll study the micro minerals. Micro minerals which are very essential for the body. जब हम क्लासिफिकेशन करते थे तो मैक्रो और द प्रिंसिपल एलिमेंट्स और माइक्रो और द एसेंशियल trace elements. There are some trace elements which are very taken part in the vital functions of the body, and copper is one of them. Copper is a micro mineral. What is micro mineral? It means that its requirement is less than 100 milligram per day, and it is the essential trace element. It is also included in the essential trace element, and the human being contains near about 100 milligrams of copper, and mainly present in liver, brain, kidney, and heart. These are rich in copper. Free copper is near about 4% to 96%. If 4%, 96% is bound to the ceruloplasmin in the body. Ceruloplasmin, जब हमने आयरन पढ़ा था तो it's very important the iron metabolism. Ceruloplasmin. Basically, it is a part of peroxidase enzyme. It is a major copper containing protein in the body and plays role in metabolism and especially in the iron metabolism. Ceruloplasmin usually removes iron from the body, from the cell. The absence of ceruloplasmin leads to the abnormal deposits of iron in these body tissues, and especially pancreas, liver, and retina, and the basal ganglia of the brain. Ceruloplasmin, it means that when there is a deficiency of copper, so definitely there will be the deficiency of the ceruloplasmin. It is part of the peroxidase enzyme. The sources of copper, major sources are the cereals जो हम खाते हैं, चावल और गंदम वगैरह, then the legumes, फलियों वाली, and then the raisins, soggy, the dried grape, and the nuts. These are the major sources of the copper in diet. The functions of the copper in the body. It acts as a cofactor of enzyme, many enzymes, very important enzyme. Cofactor, आपको पता है what is cofactor? Cofactor is basically part of the prosthetic part of the enzyme, non-protein part of the enzyme. And it is very important enzymes that are dependent on the copper. Cytochrome oxidase. Cytochrome oxidase को हम complex 4 का enzyme भी कहते हैं. It's also the complex 4. We will study in the second year in the metabolism and the formation of energy by the electron transport chain. आपको पता है कि ATP is very much important for us for the normal working of the cells. और जो ATP production है, it is the major production in the electron transport chain. Electron transport, glucose, आपको पता है कि glucose is the major fuel for energy in our body. कुछ हमारे tissues हैं, especially the brain, neurons and the RBC, which are 100% dependent on the glucose. तो glycolysis, when the breakdown of the glucose to generate the ATP, जब उसकी breakdown होती है ATP generation में, तो some part is anaerobic without the oxygen, and it's very only 2 molecules of ATP are produced
2 invested, 4 production, net there is only 2 molecules available when there is the oxygen is not present. And when the oxygen is present and the mitochondria is present in the cell, ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया. आपको पता है कि बहुत से सेल बॉडी में ऐसे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेल विच आर लैकिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आरबीसी है. और बहुत से सेल हैं देयर दी ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी मच डेफिशिएंट, उसमें हमारे कॉर्निया और लेंस वगैरह आ जाते हैं. उनमें जो मेजर डिपेंडेंसी है एनर्जी की, दैट बिकम्स ऑन दी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पे आ जाती है. लेकिन जब यहाँ पे प्रोडक्शन सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज वर्किंग देयर इन द इनर लेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पे जाके ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. यानी तकरीबन हम 38 के करीब मालिक्यूल, 30 के करीब मालिक्यूल्स हम एटीपी के वहाँ पे हो जाते हैं. और दैट इज ओनली ड्यू टू दी availability of the oxidant in the electron transport chain. तो यहाँ से वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इट इज द एंजाइम, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये उसमें हेल्प करती है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लक्सीडेज, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, फिर आगे ट्रांसपोर्ट करती है और फिर रिड्यूस कर देती है. तो इस तरह से जो इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके साथ प्रोटॉन होते हैं, वो जो हम आगे पढ़ेंगे, और इसी से फिर कॉम्प्लेक्स 5 जो है ना, जिसको एटीपी सिंथेस कहते हैं, वो चलता है, जिसके वजह देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी. सो द इलेक्ट्रॉन 4 का जो एटीपी का कॉम्प्लेक्स 4 है विच इज द साइटोक्रोम. साइटोक्रोम बेसिकली आपको पता है कि हीम कंटेनिंग ये है, उसमें फेरस और फेरिक की यही ऑक्सीडेटिव रिडक्शन है. तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, और इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और अगर वहाँ पे डेफिशिएंसी होगी कॉपर की, तो क्या होगा, देयर विल बी द डेफिशिएंसी, देयर विल द प्रोसेस ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन कैन बी कंप्रोमाइज. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सही काम नहीं करेगा इफ देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर किसी भी वजह से. Then the next enzyme, the dopamine decarboxylase. Dopamine decarboxylase. Decarboxylase है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में we extruded the carbon atom. It catalyzes the conversion of aromatic amino acid into the corresponding amines. जो डोपामीन डिकार्बोक्सिलेज है कि ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कार्बन मॉलिक्यूल निकालता है, जिसकी वजह से डोपामीन एरोमेटिक अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है इमाइन में. एंड डोपामीन डिकार्बोक्सिलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डोपामीन एंड सेरोटोनिन. इसका मतलब है कि डोपामीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ये काम क्या करेगा, इट विल be used in the production of the dopamine and serotonin. These are the two very important neurotransmitters. Dopamine, अब अगर कॉपर की डेफिशिएंसी है तो इट मीन दैट द फंक्शन ऑफ द डोपामीन डिकार्बोक्सिलेज विल आल्सो कंप्रोमाइज, और फिर क्या होगा कि डोपा की प्रोडक्शन भी होगी. जब डोपा की डेफिशिएंसी होगी तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिजीज है दैट द पार्किंसन डिजीज. ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है. आपने पार्किंसनिज्म का पेशेंट देखा होगा, क्योंकि हम चाहते हो हाथ हिलाते हैं, वो बिल्कुल हाथ नहीं हिलाएगा, सीधा चलेगा, और उसका जो फेशियल कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हाथों में नहीं होगी. तो इट्स वेरी मिजरेबल डिजीज एंड देन इट लीड्स टू डिप्रेशन. अब देखिए कॉपर की डेफिशिएंसी हुई है, उसके साथ डोपामीन डिकार्बोक्सिलेज का जो फंक्शन है वो कंप्रोमाइज हो गया, उसका डिजीज कौन सी डेवलप हो गई. देयर आर मेनी अदर रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पार्किंसन, बट इट कुड बी वन ऑफ द रीजन, डेफिशिएंसी ऑफ द कॉपर. उसके बाद सेरोटोनिन जो है इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो हमारे डिपेंडेंट है ना खाने पीने के और अच्छे मूड के, वो सारा इट्स अवेलेबल ऑन दी
ये भी तो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर भी है, बट इट इज बिलीव टू हेल्प और रेगुलेट द मूड एंड सोशल बिहेवियर। ये हमारे मूड और सोशल बिहेवियर को करता है। तो इसका मतलब है कि व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द कपल, देयर कुड बी द डेफिशिएंसी द compromise function of the dopamine decarboxylase, and there would be the compromise in the production of the dopamine and serotonin। तो इसमें डिप्रेशन हो जाएगी, पार्किंसन डिजीज हो जाएगी। तो ये सारा ड्यू टू द डेफिशिएंसी, इट कुड बी वन ऑफ द काज। Then the tyrosinase, tyrosine is going to convert into the melanin, and tyrosinase is the copper containing enzyme that catalyzes the production of melanin dark pigment। जो हमारे कलर डार्क है, इट इज ड्यू टू दी मेलानिन। और आपने देखा होगा एल्बाइनिज्म डिजीज है इन विच देयर इज द एब्सेंस ऑफ द मेलानिन, डार्क पिगमेंट एब्सेंट है। एल्बाइनो आपने देखा होगा ना कि वो बेचारे आंख नहीं खोल सकते, जिसम सारा उनका कोई डार्क पिगमेंटेशन नहीं होती। तो अब देखिए, इट कुड बी वन ऑफ द काज ऑफ द एल्बाइनिज्म if there is a deficiency of the copper, the enzyme tyrosine will not work properly, and the tyrosine could not be converted to the melanin, which is a dark pigment, and there could be the albinism. Then the cytochrome C oxidase, ये भी यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का साइटोसिन कम्प्लेक्स 3 और 4 के दरमियान जो साइटोक्रोम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, इट टेक्स पार्ट इन दैट इलेक्ट्रॉन transport the cytochrome C oxidase. Then the superoxide dismutase, very important, and it also depends on the, its function depends on the copper. Superoxide dismutase, ये enzyme, this enzyme alternatively catalyzes the dismutation or partitioning the superoxide। अब देखिए, ऑक्सीजन अनपेयर्ड ऑक्सीजन में अगर कोई अनपेयर्ड है तो इसका मतलब है इट कैन काज दी टेक पार्ट इन द रिएक्शन, अनवांटेड रिएक्शन में चले जाएगी, और फिर वो खास तौर पे पर ऑक्सीडेशन, और इट कैन डिस्ट्रॉय दी प्रोटीन एंड लिपिड पर ऑक्सीडेशन। सेल वाल में खास तौर पे लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो उनको हम ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये करता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दैट दे कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड द ऑर्डिनरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगेन कन्वर्टेड बाय द कैटालिस्ट इनटू द हाइड्रोजन वाटर एंड द सिंपल ऑक्सीजन। तो बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज आल्सो वेरी मच डेंजरस फॉर दी बॉडी, वो भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। ठीक है जी। देन द सुपर ऑक्साइड dismutase, and there is the monoamine oxidase। Monoamine oxidase catalyzes the oxidation of the monoamines and cleans up the neurotransmitter। जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, जो फालतू होते हैं, अगर वो को क्लीन करती है, इट मीन इट इज आल्सो कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम। तो अब अगर वो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द कॉपर एंड द फंक्शन ऑफ द सुपर मोनोमाइन दिस ऑक्सीडेज इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग, तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द सेल। देन द टायरोसिन ऑक्सीडेज द सेम फंक्शन, conversion of the tyrosine into the melanin, the dark pigment। So these are all due to the working due to the copper dependent enzyme। ये हमने आयरन मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था कि फेरस इज गोइंग टू फेरिक फॉर्म, अब इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू जो सेरियोप्लाज्मिन है, ये आप देखें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है जी। और उसके साथ ही ये पेरोक्सीडोज एलिमेंट का पार्ट है, तो इट विल टेक इन दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ दी फेरस टू फेरिक। इन दिस वे द फेरस से जब फेरिक में जाएगा तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, फिर फेरिक से फेरस में आएगा तो ऑक्सीजन दोबारा उसको दे देगा। तो इन दिस वे देयर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेरियोप्लाज्मिन जो कैरियर है, इट इज द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन एंजाइम।
अब कॉपर डेफिशिएंसी में होगा कि एक तो ये सारे एंजाइम जो हमने देखे हैं, अगर इनमें इनके फंक्शन सारा कंप्रोमाइज हो जाएगा उसके साथ डिजीज, लेकिन इसके अलावा द मेन इज दी इट काजेज द एनीमिया, माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक स्मॉल सेल्स और नॉर्मोक्रोमिक मीन देयर विल बी एनीमिया बट इन विच द जो हीमोग्लोबिन की जो रेशो है, कांस्टेंट रेशो, वो उसको ठीक होगी विद इन द स्टैंडर्ड रेंज। द रेशो ऑफ हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज इज विद द स्टैंडर्ड रेंज। वो इसका मतलब है उसके में हीमोग्लोबिन कम नहीं है, लेकिन क्या है कि देयर इज द आरबीसीज जो है वो जो सेल्स हैं वो स्मॉल सेल्स हैं, इसलिए वो सेल कम हो जाएंगे, लेकिन विद दी बट देयर इज इनसफिशिएंट नंबर्स ऑफ आरबीसी, क्योंकि माइक्रोसिटिक जो स्मॉल सेल होंगे वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब कि आरबीसी कम हो गया, लेकिन उसमें वो हीमोग्लोबिन तो है, बट इवन देन देयर इज एन एनीमिया बिकॉज देयर इज द परसेंटेज ऑफ आरबीसीज बिकम लेस। ठीक है, देन द फेलियर ऑफ मेलानिन फॉर्मिंग बिकॉज टायरोसिन ऑक्सीडेज बिकम द इनएक्टिव। ये अभी का है कि इट कैन लीड टू द एल्बिनिज्म, जिसमें एब्सेंस ऑफ द डार्क पिगमेंट ड्यू टू द compromise of the function of the tyrosinase or tyrosine oxidase. Then the Menkes disease, it is also called the kinky hair syndrome. It's a sex-linked recessive disorder in which there is cerebral and cerebellar degeneration. Cerebral और cerebellar brain की degeneration होगी. And connective tissue, there could be the connective tissue abnormalities and kinky hair. इसमें क्या होगा कि कॉपर और सेरियोप्लाज्मिन बोथ विल बी ऑफ द लो। अब इसमें डेफिशिएंसी अगर कॉपर की है तो इसके साथ ही सेरियोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी है। इट कैन लीड टू द मैंकी डिजीज इन विच देयर इज द सेरिब्रल एंड सेरिबेलर डिजेनरेशन, और उसमें क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू एबनॉर्मलिटीज होंगी और किंकी हेयर होगा। देन द विल्सन डिजीज, it is an autosomal recessive disorder and there is a decrease in the biliary excretion of the copper. कॉपर की एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होती, क्या होगा, कॉपर ब्लड एंड टिश्यू कॉपर इज हाई इन दिस पेशेंट, उसमें ब्लड कॉपर की एक्यूमुलेशन हो जाएगी एंड दैट लीड्स टू द रिटेंशन ऑफ द कॉपर फॉलोड बाय द हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन। हेपेटो इसका मतलब है कि उसके लिवर में भी देयर विल बी दी एबनॉर्मल accumulation of the copper and lenticular in the lens of the eye में भी होगी, और उसके साथ ही उनका फंक्शन डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगी, तो फंक्शन उनका कंप्रोमाइज हो जाएगा। These are the two diseases, Menkes disease and Wilson disease due to the copper deficiency and excess. आयोडीन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चलें बहरहाल इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है। इसके सोर्सेज आपको पता है कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, obtained from seashore and sea fish are rich in the iodine. People who live on hills do not get iodine from the, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हिली एरियाज की तरफ, तो आपको वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। दे आर प्रोन टू सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे कराची की तरफ आएंगे तो उसमें आपको आयोडीन डेफिशिएंसी कम नजर आएगी। इट इज मेनली अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन and the transported as protein complex in the plasma. और इसका फंक्शन मेन आपको पता है कि इट इज द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। T3 है ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 है थायरॉक्सिन। ये इट आल्सो फंक्शन एज एंटीबैक्टीरियल इन एंड आउटसाइड द बॉडी and can also help in the prevention of the fibrocystic breast disease. Fibrocystic breast disease जो है ये जिस तरह वो ब्रेस्ट माउस लंप ब्रेस्ट में बन जाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट दी कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, कैंसर नहीं होता, लेकिन उसमें
जो दिस इज ड्यू टू द ईस्ट्रोजन हार्मोन के जो इफेक्ट्स हैं ना, उनकी वजह से ये हो जाता है मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट, एंड इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी विल लीड टू गाइटर एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द नेक, और हाइपोथायरिज्म हो जाएगा, हाइपोथायरिज्म हो सकता है क्योंकि फंक्शन ठीक नहीं रहेगा ना। तो इसलिए आयोडाइज साल्ट हम आपने देखा होगा कि अक्सर यूज करते हैं। देन द सेलेनियम, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई दफ़ा ये क्वेश्चन आया है, खास तौर पे कि व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स ऑफ द, हाउ द सेलेनियम एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। It's also a essential trace element, and selenium rich in liver, kidney, fingernails. Usually plant products are good sources than the animal based diet. आमतौर पे आप देखें कि जो एनिमल बेस्ड डाइट है उसमें ज़्यादा होते हैं, बट here it is the contrary. Usually the plant products are good sources of the selenium, absorbed as usual from the, most of the minerals are absorbed from the small intestine. It's also absorbed from the duodenum, first part of the small intestine, transported as the selenomethionine. ये selenomethionine ये प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, नेचुरली अकरिंग. It forms a complex with plasma proteins for transport. Plasma protein जो selenium की transport है, it is in the form of the selenomethionine. In tissues free selenium is released, लेकिन tissues में free selenium है, but in the plasma protein it transport as the in the complex form the selenomethionine. Excretion is in the urine, and recommended dietary allowance is the 50 to 100 microgram per day in the adults. Then the glutathione peroxidase. Glutathione peroxidase is a selenium dependent enzyme. Glutathione peroxidase enzyme that protects the organisms from oxidative damage. आपको पता है कि हमारे there are reactive oxygen species, ROS, reactive oxygen species. हमारी जो ऑक्सीजन है, it's very important for us, but it's only used, half ऑक्सीजन यूज होती है, और देर आर मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की सर्कल में ऑक्सीजन घूमती रहती है, एंड दीज आर कॉल्ड द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. वो ये एज ए सिग्नल के तौर पे काम करते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इट कैन काज अनवांटेड रिएक्शन प्रोडक्ट्स. तो खास तौर पे ये हमारे जो लिपिड पर ऑक्सीडेशन है ना सेल वॉल में, तो इट कैन डैमेज द सेल वॉल. इसलिए इट ग्लूटाथियोन इज ए पेरोक्सीडेज, ये सेलेनियम डिपेंडेंट एंजाइम है. इसका मतलब सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट कैसे करेगी, दो तरह करेगी. इट्स ए पार्ट ऑफ द ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज विच इज एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम. जो भी हमने पहले भी पढ़ा था एंटीऑक्सीडेंट के, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में करेगी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फिर आगे वाटर और ऑर्डिनरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगी. तो इस तरह ये इट सर्व एज ए एंटीऑक्सीडेंट. तो हाउ द सेलेनियम इज वर्किंग एज एंटीऑक्सीडेंट. Glutathione or peroxidase function is dependent on the selenium, and also it promotes the digestion, absorption of lipids and vitamin E. Vitamin E is also a very good antioxidant. So in these two ways it will act as a antioxidant. It is a part of glutathione peroxidase, prevents the peroxidation of PUFA. PU poly unsaturated fatty acids. Poly unsaturated fatty acids. आपको पता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है, तो पोली अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर फैटी एसिड दैट कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड्स, and they also protect the organism from oxidative damage. It helps in the retention of vitamin E in the blood. अब देखो विटामिन ई जब आपने लिखना है कि हाउ सेलेनियम
हेल्प्स इन दी एक्सीडेंट, तो उसमें आपने ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज डिपेंड करता है सेलेनियम पे। दूसरा एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म विटामिन ई में ये काम करते हैं। और तीसरा रिटेंशन ऑफ इन द ब्लड, ये विटामिन ई विच इज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट, इसकी helps in the retention of vitamin E in the blood. It is a cofactor for enzyme involved in the synthesis of thyroid hormone. इसका मतलब है कि ये आयोडीन डेफिशिएंसी में भी होगा, क्योंकि ये कोफैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड T3 and T4. If there is a deficiency of selenium, there could be the hypothyroidism goiter. Deficiency of selenium. Deficiency of selenium will lead to the liver cirrhosis. Liver cirrhosis, it is a condition in which the liver does not function due to long-term damage, the replacement of normal liver tissue by the scarred tissue, and there is the shrinkage of the size of the liver. तो उसमें वो लिवर नॉर्मल तौर पे काम नहीं करेगा इन दी एब्सेंस विद द डेफिशिएंसी ऑफ द सेलेनियम। देन द पैनक्रियाटिक डिजनरेशन, पैनक्रियास व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन में आपको पता है कि ये हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको सिक्रीट करती है, इसका मतलब है कि उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है इसका पार्ट है पेनक्रियास का, दैट सिक्रीट्स दी इंसुलिन है। और आपको पता है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ ग्लूकोज के लेवल को रखने के। तो इसका मतलब कि इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द सेलेनियम, दी पेनक्रियाटिक डिजनरेशन होगी और इसमें ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाएंगे। Then there could be the myopathy, infertility, myopathy pathology of the muscles, और स्पर्मेटोजोआ को फंक्शन है उसमें इनफर्टिलिटी में भी ये पार्ट प्ले करेगी। देन फेलियर ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी। And there could be the toxicity of the selenium, and the toxicity, selenium toxicity is called the selenosis. Selenosis toxic dose is 900, नॉर्मल 100 है ना, तो 900 माइक्रोग्राम पर डे। और ये किस तो इट इज प्रेजेंट द मेटल पॉलिशेज एंड एंटी रस्ट कंपाउंड्स। एक्सीडेंटली जो ये काम करते हैं मेटल पॉलिशिंग का या तो उसमें से इट कैन बी एंटर इन द बॉडी एंड इन काज द टॉक्सिसिटी, और विच इज कॉल्ड द सेलिनोसिस। थैंक यू वेरी मच।